सर्वाणि संयम्य तानि तानि सर्वाणि सर्वाणि संयम्य संयम्य युक्त आसीत मत्परः युक्तो आसीत् मत्परः युक्तमत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि वशे वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य तस्य प्रज्ञा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कोई वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन ऑफ पोपट के लिए? Yeah, I can read Hare Krishna. प्लीज हरे कृष्ण पंकज, प्लीज रीड। Translation. One who restrains his senses, keeping them under full control, and fixes his consciousness upon me, is known as a man of steady intelligence. Purport. That the highest conception of yoga perfection is Krishna consciousness is clearly explained in this verse. And unless one is Krishna conscious, it is not at all possible to control the senses. As cited above, the great sage Durvasa Muni picked a quarrel with Maharaj Ambarish, and Durvasa Muni unnecessarily became angry out of pride and therefore could not check his senses. On the other hand, the king, although not as powerful a yogi as the sage, but a devotee of the Lord, silently tolerated all the sage's injustices and thereby emerged victorious. The king was able to control his senses because of the following qualifications, as mentioned in the Srimad Bhagavatam. मैं रीड कर देता हूँ। 9.4.18 to 24, ये 4 श्लोक, यहाँ पे 5 दिए हुए, तीन श्लोक। सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयोर्वाचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने हरौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युतसत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालयदर्शने दृशौ तद्भृत्यगात्रा स्पृशेन् अङ्गसङ्गमम् ग्रानं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेशपदाभिवन्दने कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। Yes. So King Ambarish fixed his mind on the lotus feet of Lord Krishna, engaged his words in describing the abode of the Lord, his hands in cleansing the temple of the Lord, his ears in hearing the pastimes of the Lord, his eyes in seeing the form of the Lord, his body in touching the body of the devotee, his nostrils in smelling the flavor of the flowers offered to the lotus feet of the Lord, his tongue in tasting the tulsi leaves offered to him, his legs in traveling to the holy place where his temple is situated, his head in offering obeisances unto the Lord, and his desires in fulfilling the desires of the Lord. And all these qualifications made him fit to become a Matpara devotee of the Lord. The word Matpara is most significant in this connection. How one can become Matpara is described in the life of Maharaj Ambarish. Srila Baladev Vidyabhushana, a great scholar and acharya in the line of the Matpara, remarks, Mad Bhakti Prabhavena Sarvendriya Vijaya Purvika Svatma Drishya Sulabhyati Bhava. The senses can be completely controlled only by the strength of devotional service to Krishna. Also, the example of fire is sometimes given. As a blazing fire burns everything within a room, Lord Vishnu, situated in the heart of the yogi, burns up all kinds of impurities. The Yoga Sutra also prescribes meditation on Vishnu and not meditation on the void. The so called yogis who meditate on something other than the Vishnu form simply waste their time in a vain search after some
phantasmagoria. We have to be Krishna conscious, devoted to the personality of Godhead. This is the aim of the real yoga. हरे कृष्णा, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं वन हु रिस्ट्रेन्स हिज सेंसेस कीपिंग देम अंडर फुल कंट्रोल एंड फिक्सिंग हिज कॉन्शियसनेस अपॉन मी इज नोन एज अ मैन ऑफ स्टडी इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे भगवान फिर से इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए, सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए एम्फेसाइज दे रहे हैं। अब जब यहाँ पे सेंसेस बोलते हैं तो उसमें 5 सेंसेस तो आती हैं जिनको कहते हैं ज्ञान इंद्रिया। संस्कृत में ज्ञान इंद्रिया मतलब नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। तो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस ज्ञान इंद्रिया कौन कौन सी हो गई, कौन बताएगा? Prabhu ji, same 5 senses which we 5 have: सेंसेस हो गए, हाँ। तो ईयर्स, ears, ईयर्स, eyes, nose, नोज, skin, स्किन and mouth. एंड स्पीच, हाँ, माउथ। तो ये 5 हो गए। अब इसमें एक और सेंसेस हो इंक्लूड करते हैं, सिक्स्थ सेंस, जो कि माइंड है। यहाँ पे वो वाली सिक्स सेंस नहीं जो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, बट दिस इज सिक्स्थ सेंस इन द सेंस कि जिसको कंट्रोल में रखना है, और वो है माइंड। तो हमारी ये जो 5 सेंसेस हैं ये इधर उधर भटकती है कुछ ना कुछ करने के लिए, तो इनको कहते हैं ज्ञान इंद्रियां। फिर हमारी कर्म इंद्रियां भी होती हैं। कर्म इंद्रियां मतलब हाथ और पैर जिनसे हम कर्म करते हैं। तो ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां और माइंड, इन सब को सेंसेस, इंद्रियां कहा जाता है। और इनको अगर हम कंट्रोल में रखें तो वो हमारे लिए ही लाभदायक है। अगर वो अनकंट्रोल्ड रखेंगे, जहाँ उनका मन है वो जहाँ हमें खींच के ले जाएं, और हमारी बुद्धि को पता भी है कि ये गलत है, तो इससे क्या होता है, इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसलिए कृष्णा यहाँ पे समझा रहे हैं कि अगर सेंसेस कंट्रोल में रहें और माइंड और कॉन्शियसनेस हमारी फिक्स्ड रहे भगवान पे, तो फिर हम स्टेडी रह सकते हैं, मैन ऑफ स्टेडी इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे इस चीज़ पे एम्फेसाइज किया गया है कि सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाना है और माइंड और कॉन्शियसनेस को भी भगवान की सेवा में लगाना है। तो यहाँ एग्जाम्पल किसका दिया? महाराज अम्बरीश का। तो अम्बरीश महाराज की कथा हमने सुनी थी लास्ट टाइम कि कैसे अम्बरीश महाराज जो थे वो एक बहुत बड़े राजा थे, और इवन दो वो कई राजपाट के काम में थे, कई सारे ऑपुलेंसेस थे उनके पास, पैसे थे, सब चीज़ें थी, लेकिन उनका माइंड फिक्स था भगवान में। इसलिए उनके सेंसेस जो थी वो भगवान की सेवा में लगी रहती थी। और यहाँ पे बताया गया कि कैसे भगवान की सेवा में लगी रहती थी उनकी सेंसेस, यहाँ पे बताया। तो कैसे लगी रहती थी, तो हमने देखा ना, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय और माइंड, इन सबको इंक्लूड करके सेंसेस बोला गया है। तो यहाँ पे माइंड कैसे भगवान में फिक्स था उनका। उनके वर्ड्स जो थे, जो बोल रहे थे, जो स्पीच थी उनकी, वो भगवान के बारे में बोलते थे। उनके हैंड्स जो थे वो मंदिर मार्जनम, भगवान के मंदिर को साफ सफाई करने में लगते थे। वो राजा थे लेकिन वो ये कार्य करते थे साफ सफाई का। क्यों? क्योंकि भगवान से रिलेटेड था। वो सुनते थे, कथा सुनते थे भगवान की, देखते थे, भगवान के दर्शन करते थे विग्रह के, और बाकी भक्तों की सेवा में अपने आप को लगाते थे, टचिंग द बॉडी ऑफ द डिवोटीज। और जो भगवान को अर्पित कहे गए पुष्प हैं, फ्लावर्स हैं, उनकी उनको स्मेल करते थे। इस तरीके से उनके स्मेल सेंस भी जो है भगवान की सेवा में लगती थी। और टेस्ट से वो भगवान का प्रसाद और भगवान को ऑफर करी गई तुलसी लीव्स, इनको टेस्ट करते थे। पैरों से वो ट्रैवल करते थे भगवान के सेवा के लिए, भगवान के मंदिर या भगवान के जो होली प्लेसेस हैं, होली सिटीज़ है, वहाँ पे। इस तरीके से सारी सेंसेस जो हैं भगवान की सेवा में लगती। तो सेंसेस अगर हमें मिली हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको हम सिर्फ रेस्ट्रिक्ट करते रहें कि कोई नहीं, अच्छा नहीं खाना, अच्छी जगह वहाँ नहीं जाना, नहीं, सब में इंगेज करना है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए। उसी मकसद से हमें दिया है ये सेंसेस, ये बॉडी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इस वजह से वो क्वालिफाइड हैं मत परा डिवोटी बनने के। मत परा डिवोटी मतलब कि जिसकी सेंसेस पूरी भगवान की सेवा में रहती हैं।
तो दुर्वासा मुनि हमने देखा कि वो गुस्सा हो गए थे। गुस्सा मीन्स माइंड कंट्रोल नहीं हुआ उनका, और उनका माइंड नहीं कंट्रोल हुआ, इस वजह से उन्होंने एक छोटी सी चीज जो उनको अनुचित लगी उसके लिए अम्बरीश महाराज की पूरी मृत्यु करने की कोशिश की, उनका वध करने की कोशिश की। लेकिन ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं था। रेज ऑफ एंगर में आके उन्होंने ये सब किया। तो दुर्वासा मुनि जो हैं उनका कंपैरिजन हो रहा है अम्बरीश महाराज से। दुर्वासा मुनि जो है अपनी सेंसेस को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, वो सन्यासी थे, वो ऐसी जगह रह रहे थे जहाँ पे तपस्या करते थे वो, लेकिन फिर भी उनका माइंड जो है पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आया, क्योंकि वो भगवान की सेवा में डायरेक्टली नहीं लग रहे थे। और अम्बरीश महाराज भगवान की सेवा में लग रहे थे, इसलिए इवन दो वो राजपाट के काम में थे, लेकिन फिर भी उनकी जो माइंड था वो शांत था, वो बिल्कुल भगवान में लगा हुआ था, भगवान की सेवा में। इसलिए यहाँ पे जो कंपैरिजन दिया है वो इसलिए कॉन्ट्रास्टिंग और इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है, जिसको कितने कितने सैकड़ों सालों से हम लोग सुन रहे हैं और कई कई ग्रंथ लिखी गई हैं, इसलिए ताकि हम समझें कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंटरनल एनवायरनमेंट। अगर एक्सटर्नली हम ऐसे एनवायरनमेंट में हों जो कि भगवान की भक्ति के लिए ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमने इंटरनल्स अच्छे से मैनेज करे हैं तो हम उस सिचुएशन से नेविगेट कर सकते हैं। और अगर हमारे बाहर हम मंदिर में बैठे हैं, सब अच्छा एनवायरनमेंट है, लेकिन इंटरनल्स जो हैं हमारे वो भगवान में नहीं फिक्स्ड, तो हमें बहुत कम लाभ मिलेगा उस एनवायरनमेंट का। तो इसलिए हालांकि सन्यासी जो हैं, जो पूरी तरह से अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं, वो भगवान की तरफ बढ़ने के लिए उनके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं और वो बहुत जल्दी एडवांस करते हैं, और ज़्यादातर सन्यासी करते हैं ऐसे। लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि कैसे अगर सन्यासी भगवान की सेवा में फोकस ना हो, जैसे दुर्वासा मुनि, तो वो डेविएट कर जाते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो गुस्से में आ जाते हैं। उसी तरह से एक और मुनि का एग्जाम्पल आता है, सौबारी मुनि। तो आप में से किसी किसी ने हो सकता है इनकी कथा सुनी हो। सौबारी मुनि एक ऐसे योगी थे जिन्होंने तपस्या के कारण इतनी ज़्यादा शक्तियां उनको आ गई थी कि वो पानी के अंदर भी रह सकते थे। पहले के टाइम में कई बार ऐसे होता था, आप लोगों ने देखा होगा महाभारत में भी ऐसे दिखाया गया था कि कैसे जो लास्ट टाइम जब बैटल एकदम खत्म होने वाली थी, जब दुर्योधन अकेला बच गया था, तो दुर्योधन भी पानी के अंदर चला गया था और वहीं पे बैठ के वो मेडिटेट कर रहा था। तो ये पहले के टाइम में ऐसी योग सिद्धियां होती थी लोगों के पास, जिससे अलग अलग सिचुएशन में कर सकते थे। इवन आज के टाइम में भी कई सारे योगी हैं जो बड़ी ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिनके पास सिद्धियां हैं कि हमें ऐसा लगे कि सुपर नेचुरल है। मगर ये सारी सारी जो है ये सटल मैटर को मैनिपुलेट और उसको उसके अंदर से सो कॉल्ड सुपर नेचुरल पावर एक्सट्रैक्ट करने का की एक टेक्नोलॉजी है, जो कि अभी मॉडर्न ग्रॉस साइंस को नहीं पता, लेकिन ये सटल साइंस में बहुत सारे योगीज जो हैं और मिस्टिक्स हैं, उनको ये सब चीज़ें कोई ना कोई किसी न किसी तरह की कलाएं आती है ऐसी। तो जो भगवान के भक्त हैं वो इससे बहुत ज़्यादा अचंभित नहीं होते कि अरे यार वाह क्या कर दिया इसने, ये तो भगवान ही है। नहीं, ऐसे नहीं सोचते वो कहते ठीक है, अगर किसी के पास ऐसी कोई छोटी मोटी आ जाएगी सिद्धि तो उससे भी कोई भगवान नहीं बन जाता। ऐसी तो सिद्धियां रावण के पास खूब सारी थी, हिरण्यकश्यप के पास खूब सारी थी, दुर्योधन के पास भी थी, तो उससे कोई वो भगवान थोड़ी बन गए। तो ऐसे कई सारे लोगों के पास हो सकती हैं, लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे साइंटिस्ट के पास ग्रॉस मैटर को मैनिपुलेट करने के कारण टेक्नोलॉजी आई हुई है, जिससे हम रॉकेट्स, प्लेन्स, कितनी सारी चीज़ें हम लॉन्च करते हैं। उसी तरह से अलग अलग योगियों के पास भी अलग अलग सटल मैटर को मैनिपुलेट करके ऐसी टेक्नोलॉजीज आई हुई हैं। तो सौबारी मुनि जो है वो पानी के भीतर में यमुना जी के तट पे वो वहाँ पे कर रहे थे काफ़ी काफ़ी टाइम तक तपस्या।
और इतने टाइम तक तपस्या कर रहे थे वो, एक बारी उन्होंने एक अपराध कर दिया। गरुड़ जो कि भगवान के भक्त हैं, उनको के प्रति अपराध अपराध कर दिया, और अपराध के कारण एक बार जब वो उन्होंने दो मछलियों को आपस में संभोग करते हुए देखा, तो उनको भी इच्छा हुई कि अब मुझे भी जाना चाहिए वापस धरती पे, और मुझे वहाँ पे शादी करनी चाहिए। अब इतने साल की तपस्या करने के बाद भी उनका टेस्ट नहीं गया कि उनको जो है सेंस एंजॉयमेंट में इंगेज होना है। किसी सेवा के लिए नहीं उन्होंने ये डिसीजन लिया, उन्होंने ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि अब उनकी सेंसेस जो हैं इससे ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। तो क्योंकि वो सेंसेस भगवान की सेवा में नहीं लग रही थी, इसलिए वो डिस्ट्रैक्ट हो गए और वो आए धरती पे। और क्योंकि वो योगिक मिस्टिक थे, तो उन्होंने अपना शरीर जो है बहुत ही सुंदर बना लिया, और राजा के पास गए। पहले तो जब शरीर उनका ठीक नहीं था, तो राजा के पास गए और राजा को कहा कि मुझे आपकी पुत्री से शादी करनी है। राजा ने बोला कि ये इतने खराब हालत में है, इतनी तपस्या करके योगी आया है, इसको कुछ बोलूंगा तो ये मुझे शराब दे देगा। लेकिन इस हालत में ये है कि इसको देख के कोई भी मेरी बेटी शादी नहीं करना चाहेगी। तो उसने कहा ठीक है, अगर मेरी कोई भी बेटी ये कहती है कि हाँ उनको आपसे शादी करनी है, तो मैं उसके में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कर सकती। तो योगी समझ गए सौबारी मुनि कि अच्छा ये मेरे साथ ट्रिक कर रहा है, क्योंकि मेरी कंडीशन जो है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। तो क्योंकि वो योगी थे, उन्होंने अपनी कंडीशन बहुत अट्रैक्टिव बना ली, एकदम राजकुमार की तरह। इतनी अट्रैक्टिव बना ली कि जब राजा ने अपनी बेटियों को बुलाया, उनकी 50 बेटियां थी एक्चुअली, और 50 बेटियों को भी वो पसंद आ गए। तो उन्होंने कहा हाँ मैं सबसे शादी करूँगा। तो एक तरफ वो ऐसे सब कुछ छोड़ के चले गए थे तपस्या करने, लेकिन क्योंकि मन और भगवान की सेवा में नहीं लगा, इंद्रिया भगवान की सेवा में नहीं लगी, इसलिए वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। हमने विश्वामित्र मुनि का भी एग्जाम्पल पिछले हफ्ते डिस्कस किया था कि कैसे उनको भी कितनी अड़चनें आई थी अपनी भक्ति में और तपस्या में, और टेस्ट लिया गया उनका। और कई बार उनको टेस्ट फेल होने के बाद जब वो मन और इंद्रिय उनकी भगवान की सेवा में लगी, तभी वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के ब्रह्म ऋषि के प्लेटफॉर्म में भी आए, और फिर भगवान के का पर्सनल एसोसिएशन उनको मिला राम जी। तो इस तरह के से हम देखते हैं कई सारे एग्जाम्पल है कि भगवान की सेवा में जब कोई लगता है तो उसको सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, उसकी इंद्रिया जो सेंसेस हैं वो कंट्रोल भी हो जाती हैं, और कंट्रोल होने के कारण उनका माइंड जो है वो फिक्स्ड रहता है, और इसके कारण उनको ऐसी सिचुएशन से नहीं गुजरना पड़ता जैसे दुर्वासा मुनि, सौबारी मुनि और या फिर ऑर्डिनरी लोगों को गुजरना पड़ रहा है। दुर्वासा मुनि और सौबारी मुनि तो बहुत एडवांस्ड लोग हैं, लेकिन फिर भी उनसे गलतियां हुई। तो हम लोग तो हमारे लेवल पे तो हम इतने एडवांस हैं भी नहीं, तो हमारे से तो बहुत गलतियां होती हैं। तो इसलिए हमें और सीरियसली सोचना चाहिए कि कैसे हम भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति में हम रेगुलर एवरीडे रूटीन में उसको इनकॉर्पोरेट करके कैसे लग सकते हैं। तो जितना हम ऐसा प्रयास करेंगे, उतना हम देखेंगे हमारी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। और कई लोगों ने ऐसा ट्राई किया है, सिर्फ इंडियंस नहीं, हमने देखा है कि हर अलग अलग कंट्रीज़ में ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता को पढ़ के और जो भक्तों के साथ एसोसिएट करके उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन आया है। तो इस चीज़ का हम भी एडवांटेज ले सकते हैं और हम भी अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं लास्ट पार्ट में कि जिस तरीके से अग्नि के अंदर आप कोई भी गलत चीज़ या खराब चीज़ इधर उधर डालो, प्योरीफाई हो जाती है। इनफैक्ट अग्नि को सही तरीके से यूज़ करके कई सारी चीज़ों को स्टेरलाइज किया जाता है जो दूषित हों, खराब हों। तो उसी तरह से भक्ति जो है वो एक स्टेरलाइजेशन प्रोसेस है। हमारे अंदर हृदय में कितनी भी गंदगी हो, लेकिन जब हम भक्ति को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वो पूरी गंदगी चली आती है, हमारा हार्ट जो होता है शुद्ध हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है। और फिर जब हम भगवान पे इस कॉन्शियसनेस में अपना हृदय भगवान को देते हैं, और उसको कहते हैं समाधि, कि भगवान में मेडिटेट करके भगवान की सेवा में लगना। और किस पे होना चाहिए? वो विष्णु पे होना चाहिए, किसी ऑर्डिनरी चीज़। जैसे कई लोग कहते हैं हम मेडिटेट कर रहे हैं एक दिए पे,
या कोई लाइट में या ज्योति पे या पत्थर पे या एक पॉइंट पे, वो तरीके की मेडिटेशन जो है उसको बेनिफिशियल इतना बताया नहीं गया यहाँ पे। उन्होंने कहा आप मेडिटेट करें भगवान के फॉर्म में, भगवान के रूप, गुण, लीला, इन सब चीज़ों में आप मेडिटेट करेंगे तो आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। और आप पूरी की पूरी ये जो पवित्र, क्योंकि भगवान पवित्र हैं, हर चीज़ उनसे जुड़ी हुई पवित्र है, इस सब के कारण हम भी पवित्र हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे encourage किया गया है कि हम सबको करना चाहिए। ये एम है रियल योगा की। जो रियल योगा का गोल लक्षण बताया गया वो ये है, योगा मतलब भगवान से जुड़ना। तो इस प्रोसेस का, कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस का बेस्ट एग्जाम्पल यही है, जैसे अम्बरीश महाराज ने अपनी लाइफ में किया। फिर यहाँ पे ये कोट कर रहे हैं प्रभुपाद जी श्रीला बलदेव विद्याभूषण को, जो कि आचार्य हैं हमारी लाइन में जो है। तो आचार्य कौन होते हैं? जो अपने आचरण से सिखाते हैं कि कैसे करना है। और आ, जो प्रोमिनेंट गुरु होते हैं डिसिप्लिक सक्सेशन में, उनको आचार्य माना जाता है। और जो आचार्य होते हैं वो कई तरीके से हमें समझाते हैं कि क्या भगवान इन ग्रंथों में बता रहे हैं। और इसी तरीके से एक एग्जाम्पल है बलदेव विद्याभूषण का। बलदेव विद्याभूषण जो है वो करीब आज से 300 साल के करीब पहले आए रफली। और उसमें उन्होंने कई अलग अलग संप्रदाय से ज्ञान लेके हमारे संप्रदाय की बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जिसको होता है कि वेदांत सूत्रा, उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे आपके संप्रदाय में आई, ये समझाया। तो इस संप्रदाय जो हैं 4 तरीके के संप्रदाय हैं, जो कि वैष्णव बोनेफाइड संप्रदाय हैं अकॉर्डिंग टू शास्त्र। और ये 4 संप्रदाय जो हैं, इनके फाउंडिंग, इनके मेन पहले व्यक्ति जिनको भगवान ने नॉलेज दी है वो इस प्रकार है। रुद्रदेव, शिव जी, उनके फॉलोअर्स जो है वो रुद्र संप्रदाय में। और वो किसने नॉलेज दी भगवान शिव को? विष्णु जी। फिर लक्ष्मी जी, तो उनकी श्री संप्रदाय है लक्ष्मी जी का, जो लक्ष्मी जी जिनकी फाउंडिंग मेन आचार्य हैं। और ये सारे उनके फॉलोअर्स जो हैं वो श्री संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य आए। रामानुजाचार्य जिन्होंने श्रीरंगम टेम्पल, तिरुपति टेम्पल, इन सब की जो वर्शिप और सारी जो चीज़ें चल रही है वो रामानुजाचार्य के फॉलोअर्स चला रहे हैं। फिर तीसरा है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय मतलब ब्रह्मा जी के फॉलोअर्स। तो ब्रह्मा जी के बाद नारद मुनि हुए, नारद मुनि के बाद व्यासदेव, व्यासदेव के बाद मध्वाचार्य। तो इस तरीके से कई सारे लोग जो है वो एक एक संप्रदाय में एक एक आचार्य के अंडर आते हैं। और इस्कॉन ब्रह्म संप्रदाय के अंदर है। तो ब्रह्मा जी, नारद मुनि, तो ब्रह्मा जी के कई सारे शिष्य हैं, उनमें से एक नारद मुनि है। नारद मुनि के कई सारे शिष्य हैं, उनमें से एक व्यासदेव है। व्यासदेव के कई सारे शिष्य हैं, उनमें से एक मध्वाचार्य। मध्वाचार्य के कई सारे शिष्य हैं। तो ऐसे कर करके आगे संप्रदाय हुआ। तो मध्वाचार्य के बाद आगे कुछ सालों बाद आए लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। फिर उनके बाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत श्रीला प्रभुपाद, वो इस संप्रदाय में आए। तो हम सब इस संप्रदाय के अंडर हैं। और चौथा है कुमार संप्रदाय। तो कुमार संप्रदाय जो है, ब्रह्मा जी के 4 बच्चे जो है कुमार, उनको भगवान ने ज्ञान दिया, तो वो कुमार संप्रदाय। उसमें निम्बार्काचार्य काफ़ी फेमस आचार्य हैं। तो ऐसे हर एक संप्रदाय में कई सारे आचार्य जो हैं वो फेमस हैं। तो बलदेव विद्याभूषण एक आचार्य हैं उनमें से, जिनके बारे में यहाँ पे बताया गया। ओके, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट इस पर्टिकुलर सेक्शन में, इस पर्टिकुलर श्लोका में से? ओके, कंटिन्यू करते हैं 62 पे। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है एक्चुअली।
ये 62 और 63 और ये पूरी जो श्लोक है इससे हमें बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मिलेगी। तो प्लीज़ अटेंटिवली यहाँ पे मेरे साथ रिपीट कीजिए मेरे बीच में। ध्यायतो विषयान् पुंसाः ध्यायतो विषयान् विषयान् संगस्तेषुपजायते संगस्तेषु संगस्तेषु जायते जायते अंगात् संजायते कामा संगत जायते संजायते संजायते कामा कामात् क्रोधोऽभिजायते। कामः क्रोधोऽभिजायते। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन इसका? ट्रांसलेशन ऑफ पोपट मैं पढ़ देती प्रभु जी। प्लीज पढ़िए। Translation. While contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them. And from such attachment, lust develops. And from lust, anger arises. Purport. One who is not Krishna's conscious is subjected to material desires. While contemplating the objects of the senses require real engagements. And if they are not engaged in the transcendental loving service of the Lord, they will certainly seek engagement in the service of materialism. In the material world, everyone, including Lord Shiva, the Lord Brahma, to say nothing or other demigods in the heavenly planets, is subjected to the influence of sense objects. And the only method to get out of this puzzle of material existence is to become Krishna's conscious. Lord Shiva was deep in meditation, but when Parvati agitated him for sense pleasure, he agreed to the proposal, and as a result, Kartikeya was born. When Haridasa Thakur was a young devotee of the Lord, he was similarly allured by the incarnation of Maya Devi. But Haridasa easily passed the test because of his unalloyed devotion to Lord Krishna. As illustrated in the above mentioned verse of Sri Yamunacharya, Acharya, a sincere devotee of the Lord shuns all material sense enjoyment due to his higher taste for spiritual enjoyment in the association of the Lord. That is the secret of success. One who is not, therefore, in Krishna's consciousness, however powerful he may be in controlling the senses by artificial repression, is sure ultimately to fail, for the slightest thought of sense pleasure will agitate him to gratify his desires. Hare वेरी गुड, Krishna. थैंक यू सो मच। ध्यायतो, ध्यायतो विषयान पुंसा। ध्यायतो मीन्स ध्यान लगाना या सोचना या कॉन्टेम्पलेट करना। कई बार ऐसा होता है ना कि हम ख्याली पुलाव बनाते हैं कि हाँ भाई ऐसा हो जाएगा ना तो बहुत अच्छा होगा, ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, या कुछ हमारे को चाहिए तो उसके बारे में सोचते हैं कि अब वो मिलने वाला है। तो हम जैसे ऐसे ख्याली पुलाव बनाते कई बारी तो हमारे को उस चीज़ की तरफ अटैचमेंट होते जाते हैं। और कई बार ये ख्याली पुलाव ऐसे बनाने में इसमें ज़्यादा मज़ा आता है एज़ कम्पेयर टू जब वो चीज़ एक्चुअली हमें मिल जाए। मिलने पे शायद हो सकता है इतना आनंद ना आए, लेकिन जब हम सोचते रहते हैं कि मिलने वाली है तो उसमें कई बारी बहुत खुशी लगती है कि हाँ कितना अच्छा होगा जब ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में और सोच सोच के हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं। और अटैचमेंट से क्या होता है, हमें लगता है हम इस चीज़ को एंजॉय करेंगे, हमें आनंद देगी ये चीज़। ये एक्चुअली इसको अगर हम भगवान से जोड़ के नहीं आनंद ले रहे, उनके बिना खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको ब्रॉडली काम का नाम दिया जाता है। काम मीन्स जैसे ट्रांसलेट किया जाता है लस्ट के रूप में भी, लेकिन आइडिया ये है अच्छा। कि भगवान से जो जुड़ा हुआ नहीं है ऐसा आनंद प्राप्त करने की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो उसको भी लस्ट का नाम दिया जाता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। और अगर ये लस्ट या ये काम वासना पूरी ना हो तो इसकी वजह से क्या होता है, गुस्सा गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे रावण है, अब रावण ने अपनी बहन
से सुना सीता के बारे में। तो शूर्पणखा आई, शूर्पणखा के कान और नाक कट गए थे। अब उसने कहा मेरे को बदला लेना है, राम और लक्ष्मण से बदला लेना है और सीता से भी। तो पहले वो गई, किसके पास गई पहले, कौन बताएगा? पहले लक्ष्मण जी के पास। पहले लक्ष्मण जी नहीं, राम और लक्ष्मण के पास चली गई। उसके बाद जब उसके नाक कट गए उसके बाद किसके पास गई? रावण के पास। हरिदूषण। हाँ, खर और दूषण के पास गई। तो खर और दूषण के पास गई, जो उसके और भाई थे उसी एरिया में थे। वो दोनों गए कि अच्छा कैसे हो गया ये। और फिर उसने अपनी स्टोरी उल्टी करी। क्या बोला उसने? उसने कहा मैं तो एक्चुअली सीता को लेने गई थी। किसके लिए? रावण, हमने हमारे भाई के लिए। और गई वो थी राम को राम बड़े पसंद आ गए थे उसको। उसे लगा हाँ ये अच्छा है, हैंडसम है, इसके बाद जाती हूँ। तो वो राम और लक्ष्मण इनके पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन जब दोनों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया और लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट लिया, उसने कहा अब तो मेरे को बदला लेना है इनसे, बदला इनको पिटवाती हूँ ऐसे। तो फटाफट गई खर और दूषण के पास के बताने, और उसने स्टोरी पूरी चेंज कर दी। तो कई बार ऐसे होता है, मटीरियलिस्टिक लोग जो हैं वो स्टोरी अपनी चेंज कर देते हैं। गए किसी और चीज़ के लिए थे, लेकिन उनको उन्होंने बताया क्या उसने कि मैं तो इनको लेने गई थी रावण के लिए, लेकिन इन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया। तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, हम जाके देखते हैं इसको। तो खर और दूषण सबको मार दिया। उनके साथ कई सारे हजारों हजारों राक्षस थे, 14,000 के करीब। पहले उनको मारा, फिर खरदूषण को मारा। तो इस तरीके से वो फिर फाइनली गई रावण के पास, और रावण को बताने लगी कि कितनी सुंदर है सीता। और एक एक सीता के बॉडी पार्ट, अलग अलग ब्यूटी इसको डिस्क्राइब किया। रावण जस्ट सुन के ही उसको कॉन्टेम्पलेट करने लगा। वो हाँ हाँ अब मेरे को मिलेगी सीता। और ये कॉन्टेम्पलेट, ध्यायतो विषयान, विषय मीन सेंस ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर ध्यान लगा रहा है। तो इससे क्या हुआ, उसको अटैचमेंट हो गई कि सीता को तो मुझे ही चाहिए। लेकिन इस प्रोसेस से उसके अंदर लस्ट डेवलप हुई अटैचमेंट के कारण। अब लस्ट को फुलफिल करना था उसने, इन फुलफिल हो नहीं सकती थी क्योंकि एक बैरियर था। कौन था सीता और रावण के बीच में? राम। राम। तो अच्छा। सीता और रावण के बीच में सबसे पहले रावण को लगा राम है, तो राम के ऊपर उसे गुस्सा आया। कोई ज़रूरत नहीं थी उसको राम को गुस्सा करने की, ना उससे कोई लेना ना देना। लेकिन उसने कहा नहीं, सीता को एंजॉय करना है मैंने। और उसको आइडिया था कि राम इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है कुछ ना कुछ उसमें। तभी वो छुप के गया, वो अपना भेष बदल करके गया रावण, उसको आइडिया था। तो वो लेके आ गया सीता को, और राम के ऊपर उसको गुस्सा आया, तो एंगर अराइजेस। तो इस पूरे पूरे श्लोक को हम रामायण के माध्यम से समझ सकते हैं, और हम अपनी लाइफ में भी देख सकते हैं कि कैसे हम जब भगवान से अलग होकर किसी चीज़ को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सोचते हैं हम कि ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा, मैं एंजॉय करूँगा, मैं एंजॉय करूँगी। और ये सब चीज़ें अगर नहीं होती, कोई ना कोई बैरियर आ जाता है, तो हमें बहुत गुस्सा आ जाता है। तो गुस्से को तोड़ने के लिए बेसिक रूप में पहली चीज होती है कि समझना कि हम किस चीज पे कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, माइंड हमें कहाँ लेके जा रहा है। इंद्र तृप्ति, सेंसेस ऑफ, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए अगर हम कर रहे हैं, तो हमारे को रोकना चाहिए। हमारे को कॉन्टेम्पलेट करने से पहले देखना चाहिए कि कैसे इसको मैं कृष्णा कॉन्शियस तरीके से कंडक्ट करूं, ताकि भगवान के साथ हम एंजॉय करें, भगवान से दूर होके नहीं, भगवान के साथ। तो भगवान के साथ एंजॉय करने में असली आनंद है। तो पोपट में यहाँ पे समझा रहे हैं प्रभुपाद जी कि अगर कोई भगवान की भक्ति में नहीं लगा हुआ और उसके अंदर नेचुरली मटेरियल डिजायर्स होंगे, और वो नेचुरली सोचेगा कि कैसे इनको मैं फुलफिल करूं, और क्योंकि उसको भगवान की भक्ति का आइडिया नहीं है, भक्तों का शरण एसोसिएशन नहीं मिला, उसे संग नहीं मिला, भगवत गीता नहीं पढ़ी, तो वो अपने सेंसेस को ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता भगवान की सेवा में, और इस वजह से वो एंजॉय नहीं कर पाता भगवान के साथ। और वो मटीरियल चीज़ों में लगाना पड़ता है उसको सेंसेस, और मटीरियल चीज़ों में लगाने में सेंसेस बहुत नुकसान है। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया जा रहा है
लॉर्ड शिवा लॉर्ड ब्रह्मा का एग्जाम्पल दिया है। अब लॉर्ड शिवा और लॉर्ड ब्रह्मा तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। जैसे होता है ना कि कोई एम्फोसिस देना है किसी पॉइंट में आपने, तो अगर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों से भी कह दो कि अगर उन्होंने भी ये टेक्नोलॉजी या ये मशीन यूज करी, फिर भी वो हाईएस्ट लेवल तक या वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं ला पाए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग भी अगर डिजायर्ड रिजल्ट नहीं ला पाए, तो हम कहाँ से ला पाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे लॉर्ड शिवा लॉर्ड ब्रह्मा। अब लॉर्ड शिवा जो है वो एक तरीके से आप देखो वो हमेशा मेडिटेट कर रहे होते हैं, तपस्या कर रहे होते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अगर लॉर्ड शिवा लॉर्ड ब्रह्मा वो भी विचलित हो गए, उनकी भी मेडिटेशन जो है वो स्ट्रांग नहीं रही। अब ये लोग तो बाकियों को देते हैं वरदान, जैसे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, इनको वरदान दिया ब्रह्मा जी ने। शिव जी के पास गए, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ ये सब, तो इनको शिव जी ने वरदान दिया। तो ये तो वरदान देने वाले लोग हैं, इनके खुद के अंदर कितनी पावर्स होंगी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी यहाँ पे एम्फेसाइज दिया गया है कि अगर भक्ति से डिस्ट्रैक्ट हो गए तो फिर गलती कर बैठेंगे। तो यहीं पे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब कई बार ये ग्रेट पर्सनालिटीज लॉर्ड शिवा लॉर्ड ब्रह्मा ये एग्जाम्पल अपने आप को खुद एग्जाम्पल यूज करते हैं भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए कि देखो हमने भी गलतियां करी है। हालांकि ये लोग बड़े एडवांस हैं, लेकिन ये दिखाते हैं कि नहीं, विष्णु इज द हाईएस्ट। तो एडवांस होने के साथ साथ ये एक तरीके से इनकी ह्यूमिलिटी भी है, और दूसरे लेवल पे ये एम्फेसिस भी है कि विष्णु जी इज द हाईएस्ट। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे लॉर्ड शिवा लॉर्ड ब्रह्मा ये भी इस पर्टिकुलर मेडिटेशन के पाथ और दूसरे पाथ में हाईएस्ट नहीं रह पाए, इनको भी भक्ति पे आना पड़ा, तब ये हाईएस्ट हुए। तो इसलिए लॉर्ड शिवा को अगर हम देखें तो उनको कहा जाता है भक्तों में सर्वश्रेष्ठ, वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो इसलिए लॉर्ड शिवा का एग्जाम्पल हम फॉलो करते हैं, और हमने बताया कैसे लॉर्ड शिवा लॉर्ड ब्रह्मा ये सारे संप्रदाय आचार्य हैं। मगर इनका यहाँ पे पॉइंट ये दिया गया है कि कैसे अगर भक्ति को यूज नहीं करेंगे तो ये भी गलतियां कर लेंगे। लेकिन भक्ति को ऑर्डिनरी व्यक्ति ने यूज किया, किसने? हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर कौन थे? तो ये मुस्लिम समाज में इनका जन्म हुआ, मुस्लिम परिवार में पले बड़े, और इनको जब भक्ति के प्रोसेस के संपर्क में आए तो इमीडिएटली इन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और भगवान के नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन भगवान के नामों को ये निरंतर लेते रहे। और इतना इनके साथ अटैचमेंट हो गया कि जब काजी जो वहाँ के रूलर थे, मुस्लिम रूलर, उनको पता लगा कि ये मुस्लिम होके हिंदुओं का जाप कर रहे हैं, इसको बुलाओ। ये 500 साल पहले आए हरिदास ठाकुर। तो जब गए वहाँ पे तो हरिदास ठाकुर से उन्होंने बोला कि आप ये क्या गलत चीज़ें कर रहे हो, आपको ये छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो मैं तो इतना इसमें एब्जॉर्ब हो चुका हूँ कि मैं छोड़ ही नहीं सकता। उन्होंने कहा अगर आप छोड़ोगे नहीं हम शरीर के आपके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उन्होंने कहा हर टुकड़े में से यही आवाज़ आएगी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वहाँ जो जल्लाद खड़े थे उनको ले गए, उन्होंने कहा इसको ना मार मार के, जो चाबुक होता है उससे मारते रहो मारते रहो मारते रहो जब तक मर ना जाए। तो कई पूरे मार्केट में घुमाते रहे उसको, घसीट घसीट के और मारते रहे। लेकिन भगवान जो थे उनको बचाने के लिए आए, और भगवान ने सारी की सारी चाबुक का दर्द अपने ऊपर ले लिया। क्यों? क्योंकि हरिदास ठाकुर प्रार्थना कर रहे थे कि ये जो मुझे मार रहे हैं ना लोग, इनको आप कोई बुरी सजा मत दो भगवान, इन बेचारों को पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, आप इनको माफ कर दो। तो ये मैग्नानिमिटी थी हरिदास ठाकुर की। तो हरिदास ठाकुर जो है वो नामाचार्य की उपाधि मिली उन्हें, मतलब हर नाम को कैसे लेना चाहिए उसके आचार्य हैं ये। और हरिदास ठाकुर एक्चुअली ब्रह्मा जी ने ही रूप लिया हरिदास ठाकुर का। ब्रह्मा जी की इच्छा थी कि वो ऐसी अब एक बार ब्रह्मा जी से गलती हुई। क्या गलती हुई? उन्होंने कृष्णा को पहचाना नहीं। उन्होंने कहा ये कैसा बालक है, इतने सारे
काउहर्ड बॉयज जो गोपा है उनके साथ ये खेल रहा है, वो अपना जूठा इसको खिला देते हैं, ये भगवान नहीं हो सकता, कुछ और ही है। तो उन्होंने टेस्ट करने की कोशिश की। लंबी कथा है, ब्रह्म विमोहन लीला। लेकिन बेसिकली ब्रह्मा जी को आइडिया हो गया, अरे यार मैंने तो गलती कर दी, मैंने तो इन सारे गोपा गाय ये सब छुपा दिए थे, और भगवान जो थे उन्होंने अपने आप को एक्सपैंड कर लिया हर गोपा हर गाय में, और कई कई दिन पूरे साल तक ऐसा चलता रहा। फिर ब्रह्मा को फाइनली रियलाइज हुआ मैंने तो मिस्टेक कर दी, ये क्या हो गया। फिर ब्रह्मा जी जाके क्षमा मांगी उन्होंने कृष्णा से, और क्षमा मांगने के साथ साथ उनका इच्छा थी कि मैं ऐसे परिवार में जन्म दूं जो निचली जाति का है। क्यों? क्योंकि मुझे प्राउड बड़ा हो गया था कि मैं तो ब्रह्मा हूँ, मैं तो सबसे बड़ा हूँ, तो मुझे प्राउड हो गया था। तो इसलिए मैं निचली जाति में जन्म लेके और आपके नाम हमेशा लेता रहूं। तो वो ब्रह्मा जी जिनसे गलती हुई उन्होंने पूरी तरह से प्यूरिफाई होके हरिदास ठाकुर के रूप में उन्होंने जन्म लिया, और उन्होंने अपने एग्जाम से दिखाया कि कैसे ये भक्ति का प्रोसेस बेस्ट है। तो इसलिए लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा, इन्होंने भी भक्ति का प्रोसेस यूज किया। हरिदास ठाकुर की लाइफ में हमने देखा कि कैसे वो अनटच थे, अभी यहाँ पे उन्हें चाबुक पढ़ते रहे फिर भी वो भगवान का नाम लेते रहे। और एक और कई और इंस्टेंसेस हैं जब हरिदास ठाकुर के पास विश्व सुंदरी से भी बहुत अच्छी सुंदरियां आई, और उनको विचलित करने की कोशिश की, प्रयास किया। हरिदास ठाकुर ने उनको बोला कि मैं थोड़ा अपनी जपा कर रहा हूँ, आप थोड़ा यहाँ पे बैठो, या आप थोड़ा मेरे को टाइम दो, फिर मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारी इच्छा पूरी करो, हम देखो कितनी सुंदर है, मैं कितनी सुंदर हूँ, और आप भी हैंडसम हो, और रात का समय है, कोई है भी नहीं, तो ये परफेक्ट टाइम है हम लोगों को एंजॉय करने का। तो हरिदास ठाकुर ने कहा अवश्य अवश्य ज़रूर, बट पहले चैंटिंग कर लेता हूँ मैं, मैंने ये वाव ली हुई है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो चैंटिंग करते रहे करते रहे करते रहे। अब वो पूरे रात हो गई, सुबह हो गई। अब सुबह जब हुई तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब आप नेक्स्ट डे आना आप। तो इस तरीके से 3 दिन हो गए, और 3 दिन में वो भगवान के नाम सुन के जो माया देवी जो खुद आई थी हरिदास ठाकुर को विचलित करने के लिए, उसका हार्ट ट्रांसफॉर्म हो गया। उसने कहा कि ठीक है, आई गिव अप। मैं वो खुद भगवान का नाम लेने लग गए। तो इस तरीके से हरिदास ठाकुर के साथ 2 बार ही हुआ। और ये शो करता है कि भक्ति की पावर कितनी ज़्यादा पोटेंट है, कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, कितनी ज़्यादा इंटेंस है ये। और यमुनाचार्य के बारे में हमने डिस्कस किया था पिछले वीक कि कैसे वो एक राजा बन गए थे, लेकिन क्योंकि बचपन में उनको भगवत गीता की नॉलेज दी गई थी, तो इसलिए राजा बनने के बाद भी जब वो फिर री इंट्रोड्यूस हुए तो इमीडिएटली उन्होंने कहा हाँ मेरे को आई हैव टू गो बैक। और फिर उन्होंने इतने अच्छे से ये चीज़ को किया कि वो आचार्य बन गए, वो यमुनाचार्य के नाम से फेमस हुए। तो इस तरीके से हम देखते हैं रिपीटेडली कि भक्ति की शक्ति कितने शास्त्रों के माध्यम से, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, पुराने टाइम से, आचार्यों से, देवी देवताओं से, सबके एग्जाम्पल में, और आज इस सदी में 21st सेंचुरी में हम देखते हैं कि कैसे इसकी पोटेंसी सबसे ज़्यादा एविडेंट है। कि ऐसी ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे चाइना, रशिया, इस्लामिक कंट्रीज़, या ऐसी कंट्रीज जो अफ्रीका में है, जहाँ पे लोगों का कोई आइडिया नहीं था उनको सनातन धर्म का, लेकिन जब वो इस नॉलेज से इंट्रोड्यूस हुए तो उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, और अभी वो पूरी तरह से भक्ति को एक्सेप्ट कर चुके हैं और फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कैसे ये प्रोसेस जो है वो फुल प्रूफ है, पूरी तरह से प्रैक्टिकल है और हेल्पफुल है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे एंगर जो है उसको हम हर स्टेप पे प्रिवेंट करते हैं आने से, और भक्ति का प्रोसेस उसके लिए अच्छा रहता है। अब आगे वाले श्लोक में जो कि हम नेक्स्ट वीक करेंगे, उसमें हम देखेंगे एंगर आने से फिर आगे क्या होता है, उससे कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। पर यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट? ये सरिता माता जी कुछ शेयर करेंगे आप?
नहीं प्रभु जी, मैं सोच रही हूँ, मुझे अभी अभी नहीं याद आएगा, मुझे अगले दिन याद आता है ये मेरी मैं सोच रही हूँ ये पूछना चाहिए था तब। नहीं, आप लिख सकते हो, फिर नेक्स्ट ओके टाइम ओके ओके श्योर, नेक्स्ट टाइम देन डेफिनेटली मैं डाल दूंगी ऐसे। परफेक्ट। और किसी का कोई? यस मेनका जी। हरे कृष्णा। हाँ सिर्फ सिर्फ थैंक यू बोलना चाह रही थी, क्योंकि लाइक जैसे आप एक्सप्लेन करते हो प्रैक्टिकली और आप समझाते हो और श्लोक भी समझा रहे हैं कि प्रैक्टिकली इस मॉडर्न टाइम में हम कैसे फोकस कर सकते हैं भगवान पे। लाइक आई रियली अप्रिशिएट इट, सो सिर्फ थैंक यू बोलना था। इट हर बारी मैं सुनती हूँ, लाइक इंस्पिरेशन आ जाती है, जैसे एक स्पार्क आ जाती है कि ओ या रिचार्ज बैटरी। हम अभी और भी मैं डिवोशन पे फोकस कर सकती हूँ। सो आई जस्ट अप्रिशिएट आप जो आप सेवा कर रहे हो और इस प्लेटफॉर्म पे, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर द नाइस वर्ड्स। एक्चुअली कृष्णा के सारे वर्ड्स भी जो है ना वो encouragement के हैं, कि कैसे हम्म अर्जुन पूरी तरह से डिप्रेशन में था और अर्जुन को एकदम उन्होंने हाईएस्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन पे ले आए हो, जस्ट भगवत गीता के माध्यम से। तो ये फुल ऑफ इंस्पिरेशन है, इंकरेजमेंट है। तो हम भी इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि कृष्णा ने बोली हम सबके लिए, पर्सनल वर्ड्स हैं उनके, हमें जस्ट उसके साथ कनेक्ट करना है। तो हम्म थैंक यू वेरी मच फॉर। थैंक यू। प्रभु जी आप श्रेय नहीं ले रहे, पर आप, और जैसे मैं भागवतम क्लास भी करती हूँ वहां पे भी मैं देखती हूँ बहुत सेल्फलेसली इतना अच्छा समझाते करते हैं ना कि आप मिस ही नहीं करना चाहते हो, पर आपको श्रेय जाते हैं, आप लोग जो इतना करते हैं सच में। श्रेय तो ज्यादा आचार्यों को जिन्होंने इतने अच्छे से दिया है, जैसे श्रील प्रभुपाद और आप हाँ सब। वो है, पर फिर भी आप भी अपना समय देते हो निकाल के, ये बड़ी बात है। क्योंकि मैं बोली ना, ये भागवत गीता से स्टार्ट किया, मुझे भागवतन एक दिन भी मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। और सब आंसर्स, लाइक मैं उनको भी बोलती हूँ कि लाइफ क्या है, पूरा अंडरस्टैंडिंग इतना अच्छा हो रहा है कि आई हैड सो मेनी क्वेश्चन। शायद मुझे इसीलिए कहते हैं ना, भगवान ने मिला दिया है कि अभी मुझे कोई क्वेश्चन नहीं रहता, जब भी रहता है सब उसी समय हो जाता है। तो सच में है। दैट इज सो नाइस। हाँ, यस एक्चुअली साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज टू आस्क क्वेश्चंस। अगर कोई यस बुद्धिमान है उसका मतलब है उसको सवाल आना चाहिए। तो लाइफ में अगर आप देखो, कई सारे लोगों के पास सवाल आते हैं जो बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन जो भगवत गीता और ऐसे शास्त्रों के साथ कनेक्ट होते हैं ना, उनको एक्चुअली आंसर्स मिलते हैं। बाकी लोग तो जस्ट अपना जैसे तैसे ऑटो पायलट में लगा के चलते रहते हैं, वो सोचते नहीं है। लेकिन जो सवाल पूछते हैं, भगवत गीता और भागवतम, इन सब में सारे सवाल के जवाब है। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब आई डोंट नो क्या आप सोचेंगे, मैं भी क्या पूछ रही हूँ। पर जब भी ना, जब होते जैसे सुनने का रहता है, पर मुझे हमेशा ऐसा लगता है ना, जब भगवान करते हैं तो मुझे हिंदी में सुनना बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट, मुझे इसको चेंज करना है, पर मुझे हो नहीं रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है जब करते हैं तो हिंदी में कुछ भी रहता है सुनना है तो मुझे बहुत आनंद आता है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं आती, वो एक सेकेंडरी है, पर वहां ऐसा लगता है लाइक थोड़ा स्ट्रेंजरपन आ जाता है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई। नहीं, पर एक्चुअली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, हर एक व्यक्ति की अलग एक पर्सनल वे है भगवान के साथ कनेक्ट करने का। पर्सनल हमारा एक्सपोजर है बचपन से, जिस तरीके की भाषा के साथ हम कनेक्ट करते हैं, समझते हैं, तो उसको चेंज करने की आर्टिफिशियली कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदी तो बहुत सारे अनलिमिटेड ऑप्शन हैं हिंदी सुनने के लिए। जिसको जो भाषा में चाहिए वो भाषा के लिए पूरी तरह से अवेलेबल है। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन दैट। पता नहीं, मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं इंग्लिश में सुनती हूँ ज्यादा तो खुद भी नहीं बात, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आई एम टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर। पर जब हिंदी का कुछ ऐसा लगता है, आई रियली कनेक्ट टू गॉड, ऐसा हो जाता है। करेक्ट, करेक्ट। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। है ना? एक्चुअली कई लोगों को रस उसी भाषा में आता है जिससे वो कनेक्ट होते हैं। ओ दिस इज परफेक्टली फाइन। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। Hare Krishna. This is हरे कृष्णा Sanjay संजय जी, Patwardhan. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Naini, thank you for allowing me to join this group. And today I'm recognizing a fantastic attribute in you. So very impressive. And thank you. Bhagwan ki थैंक यू, kripa. थैंक यू, आपने समय निकाल के ज्वाइन किया, वेरी ग्रेटफुल टू यू। ओके, थैंक यू एवरीवन, वेरी ग्रेटफुल आप सबने ज्वाइन किया। हम इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे, और ये सारे जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि अगर किसी का कोई पॉइंट मिस हो गया तो दे कैन कनेक्ट एंड हेयर फ्रॉम दैट।
ओके, ग्रंथराज भगवद गीता की जय। जय। श्रील हरे कृष्णा प्रभुपाद की हरे जय। की जय।